Hey, so we were studying about Python memory management. Some of the concepts we have already discussed about it, and in this video and in the upcoming videos, we will touch concepts like reference counting, garbage collection, and some optimization technique which Python uses. Fine. So to explain this, we first have to go through the simple code. X is equals to 10 and then we delete the x. From the previous videos, we have developed this understanding that whenever someone writes x is equals to 10, तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है like a integer object 10 is created in the memory and a name or variable or label is pointing to it. So the line number 1 is clear, but what happens in line number 2? For that, what del x does, we have to go through reference counting first to understand what second line does. Okay, so reference counting का basic क्या है? Basically every Python object tracks how many references points to it. So in the above example, we know that someone write x is equals to 10. तो एक x है that is pointing to the object 10. So in this case, how many references are pointing to the integer object 10? It is 1. So the reference count is equals to 1. सिंपल है, ठीक है. इन फ्यूचर अगर एक और वेरिएबल इसको पॉइंट करने लगे तो इसका रेफरेंस काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट. ऐसे चलता है, ठीक है. This code is something you can try in your uh, like editor, whatever you use, and इसका आउटपुट रेफरेंस काउंट का 2 आएगा. Why? So एक बार ड्राई रन करते हैं. x is equals to 1 2 3 है, right? So this is a list object and x is pointing to it, right? तो मेमोरी में कहीं पर ये लिस्ट ऑब्जेक्ट बनता होगा एंड x would be pointing to it. तो रेफरेंस काउंट प्लस प्लस होगा, then it would be going from 0 to 1, right? And then in the second line we are passing this x to a function. So this is a property that whenever you pass this variable to a function, so reference count इस केस में फिर से increase होता है. So this time 1 से 2 हो जाएगा. So that would be the explanation of the 2 you are getting in the editor. Now coming to what is happening when we write these two lines. So step 1 में क्या होता है? We declare x is equals to 10, right? तो namespace में एक x variable होगा in its local scope which will be pointing to integer object and it is the heap memory. जितने भी objects बनते हैं that are created in the heap memory, right? तो एक integer object 10 बना होगा at some address जो ये mentioned है and x is pointing to it. So इसका reference count कितना है? 1, क्योंकि एक variable इसको point कर रहा है. Now step 2, del x. अब इसमें क्या हुआ? We are deleting this namespace variable. So x is now no more. Then nobody is pointing to this integer object. And when nobody is pointing, so the reference count drops down to 0. Or Python, whenever an object's reference count is equals to 0, drops down to 0, the Python क्या करता है? It removes that object from the memory. ठीक है, तो rc is equal to 0, तो वो object remove हो जाता है. Del removes the name, not the object. So if someone asks you del x से क्या हो रहा है? del x से वो नेम स्पेस का वेरिएबल डिलीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं डिलीट हो रहा है. ऑब्जेक्ट कौन डिलीट करता है? पाइथन इंटरनली डिलीट करता है व्हेनेवर द आरसी ड्रॉप्स डाउन टू 0. गार्बेज कलेक्टर फ्रीज द मेमोरी. ठीक है, फाइन. कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट. सो यहाँ पर लाइन नंबर 1 एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, x को दिया हुआ है. सो रेफरेंस काउंट x हो गया, रेफरेंस काउंट 1 हो गया बिकॉज x इज पॉइंटिंग टू इट. सिमिलरली अब y x को पॉइंट कर रहा है, तो सेम ऑब्जेक्ट को लाइक x भी पॉइंट करेगा, y भी पॉइंट करेगा. थर्ड लाइन में z भी पॉइंट करना शुरू कर दिया. फाइन. एंड इन द अपकमिंग 3 लाइन्स वी आर डिलीटिंग ऑल दीज 3. सो ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया. तो
1 2 3 रेफरेंस काउंट इंक्रीज हुआ, देन 2 1 0, एंड वंस इट ड्रॉप्स डाउन टू 0 मेमोरी इज फ्रीड इमीडिएटली. ठीक है, इट्स एन इमीडिएट इफेक्ट वेन एवर द रेफरेंस काउंट ड्रॉप्स डाउन टू 0. This is managed by Python. Fine. So some of the special cases which you need to remember, assign to a new variable. So you see y is equals to x. The second line, इसके करने से क्या हुआ, हमारा रेफरेंस काउंट इंक्रीज हुआ. व्हेन द रेफरेंस काउंट चेंजेस, रेफरेंस काउंट इंक्रीजेस व्हेन इट इज असाइन टू अ न्यू वेरिएबल. ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट एक न्यू वेरिएबल को असाइन हो गया था. ठीक है, तो इन दिस केस आर सी प्लस प्लस. अदरवाइज व्हेन पास टू अ फंक्शन, सो जो फर्स्ट वाला ये कोड था इसमें भी एक फंक्शन को पास किया गया था, दैट इज वाई आर सी टू आया था. एंड थर्ड इज add to container mylist dot appendix. ठीक है, whenever you add that to, let's say, a list, a container maybe एक list हो सकता है, तो in that case also rc plus plus. और decrease कब होगा, whenever we delete the variable जो उसको point कर रहा है, whenever reassign. so x is equal to 10 था, now x is equals to 9 हो गया. तो पहले x was pointing to 10, now we have made it to point to another which is 9. so इसका RC डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, फंक्शन रिटर्न्स लोकल वेरिएबल्स डिस्ट्रॉयड, ये आगे एक्सप्लेन होगा. ठीक है, इन दिस एग्जांपल. अदरवाइज रिमूव फ्रॉम कंटेनर, अदरवाइज तुम लिस्ट से भी अगर रिमूव कर दोगे तो भी एक्स डिक्रीज, मतलब RC डिक्रीज हो जाता है. फंक्शन कॉल्स एंड रेफरेंस काउंटिंग. सो द थर्ड पॉइंट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल इट्स वेरी गुड. ठीक है, so basically what happens is result is equal to create list. We are calling this create list function, and this create list function is creating a local variable mylist. और 1 2 3 एक ऑब्जेक्ट है जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, एक लोकल वेरिएबल mylist. ठीक है, when this function executes, this mylist comes into picture. ये मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बनता है, mylist इसको पॉइंट करता है. देन सेकेंड लाइन में क्या है, ये mylist रिटर्न हो जाता है. एंड नाउ ये रिजल्ट के पास चला जाता है. So result is now having this list which we created, and this local variable gets destroyed. तो in the course of action क्या हुआ, when step 1 में क्या हुआ था, when this was created for the first time, step 1 में RC प्लस प्लस, तो 0 से 1 हुआ, because of which this variable my list की वजह से. and when step 2 में क्या हुआ, रिटर्न हुआ, तो उसके वजह से क्या हुआ, ये माई लिस्ट वेरिएबल अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इट डोंट एग्जिस्ट बिकॉज वो लोकल स्कोप में था. एंड उसके वजह से RC माइनस माइनस हुआ, तो 1 से वापस 0 हो गया. बट अनदर वेरिएबल स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू इट, सो RC फिर से प्लस प्लस हो गया, तो 0 से 1 हो गया. सिंपल. ठीक है, तो नेट RC कितना होगा, रेफ काउंट stays 1 not 2. ठीक है, सिंपल. नाउ एक कॉन्सेप्ट which is very important, the circular references. So this is a scenario which you have to just listen to, and then we will be doing some analysis. So a class node banaya है हमने, and we have that init function, or that value is value that next we are giving as none. Then we create two objects. ठीक है, node 1 और node 2. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, और नोड 1 का नेक्स्ट को नोड 2 कर दिया, और नोड 2 का नेक्स्ट को नोड 1 कर दिया. अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये साइड में जो पिक्चर है, इट गिव्स क्लैरिटी ऑन दिस. इनिशियल स्टेट क्या है, नोड 1 और नोड 2 हमने दो, दिस इज द डेफिनेशन पार्ट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास. ठीक है, हेयर यू आर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स. कौन सा ऑब्जेक्ट्स, ये नोड 1 और नोड 2. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बना दिए तुमने. तो और
नोड वन स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू नोड वन, मतलब ये वाला जो रेफरेंस है, इसकी वजह से आर सी प्लस प्लस नोड वन का, इसकी वजह से नोड वन का आर सी वन हो गया होगा, और नोड टू ये इसको पॉइंट करने लगा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, इसका आर सी वन हो गया होगा। अब इन द नेक्स्ट लाइन क्या किया हमने, इन दोनों को भी आपस में पॉइंट करने लगा, ये दोनों नोड कैसे, नोड वन का नेक्स्ट को हमने नोड टू दे दिया और नोड टू का नेक्स्ट को हमने नोड वन दे दिया। सो रेफरेंस काउंट वन से क्या हो गया, दोनों का टू हो गया। ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी डू इज वी डिलीट नोड वन एंड नोड टू। तो जो नेम स्पेस में ये दो वेरिएबल्स थे, वी डिलीटेड दैट, राइट। बट इनके डिलीट करने से क्या हुआ, वी कांट एक्सेस दीज टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कोड नाउ, बिकॉज इनका कोई रेफरेंस ही नहीं है हमारे पास। बट ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली तो पॉइंट कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली दिस इज अ केस वेयर अ सर्कुलर रेफरेंस इज क्रिएटेड एंड these two objects are unreachable from code। ठीक है, नोड वन नोड टू को इंटरनली रेफर कर रहा था और नोड टू नोड वन को, बट अब कोड से वी कांट रीच देम बिकॉज उनका जो नेम स्पेस में वेरिएबल्स था दैट हैव बीन डिलीटेड। सो इनका आरसी कभी भी जीरो नहीं होगा, एंड ड्यू टू विच जो मेमोरी है वो कभी फ्री नहीं होगा। ठीक है, तो इट्स अ केस जिसको पाइथन ने हैंडल किया है थ्रू समथिंग कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट टिल दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक द सिनेरियो इज क्लियर। द मेमोरी लीक, रेफरेंस काउंटिंग अलोन कैन नॉट डिटेक्ट सर्कुलर रेफरेंसेस। अगर रेफरेंस काउंटिंग से ही हो जाता, लाइक आर सी जीरो इस केस में कभी होगा ही नहीं, तो ये इनडेफिनिट टाइम के लिए मेमोरी में बना रहेगा, विच इज़ अ प्रॉब्लम। सो फॉर दिस वी विल बी गोइंग टू स्टडी what is garbage collection in the next video। ठीक है।